सरकार को बिल वापसी लेने पड़ेंगे। वो जितना जल्दी ले लेगी उतना उनको आराम होगा। कानून वापसी नहीं होगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। Hello and welcome to this special NDTV presentation. Now, over the past 2 months, we have seen that farmers have been camping on the various borders of the National Capital Region of Delhi. On those various borders, amid tension, was also dialogue. But as days progressed, the scope for dialogue got limited and the scope of confrontation has magnified to a point where here in Ghazipur, where I am standing right now, behind these concertina wires, behind these barricades, behind the cement structures, and along with these water cannons and trucks are Jai Jawan on one side, as you can see, Jawans of the Delhi Police and Central Paramilitary Force, and on the other side of this divide you have Jai Kisan. So within a matter of 2 months, from dialogue, 11 to 12 rounds of dialogues, to a clear confrontation where borders have been drawn, where there is a clear demarcation on all borders between Jai Jawan and Jai Kisan. The big question is, who and how is this impasse going to end? And also, more importantly, post the events of 26th of January, when one saw or thought that the farmers have lost their moral standing to be able to negotiate with the government because of the violence that ensued. How is it that this movement has gotten revived? Right here at the Ghazipur border, we saw that 2 days after that incident at the Red Fort, a new farm leader, at least in this context, he's a very old farm leader, his father was also a farmer's leader. But in this context, where most of the negotiation was being done at the Singhu border by largely Sikh-dominated farm leaders, the action shifted to the Ghazipur border at Delhi and UP, where Rakesh Tikait started crying when the police had come to evict him, and the moment those tears rolled down, this agitation gained steam, gained momentum. So what is this Tikait phenomenon, and how can it, see, everything is about politics these days, how is this possibly going to impact the fortunes of political parties? Perhaps a reason why more and more politicians are now coming in to meet Rakesh Tikait as well as the farmers. Let's find out in this special presentation. It is now a daily routine at Ghazipur. Early morning, people coming out of their tents as more and more have been set up at the protest site. Breakfast being made. Truckloads of ration coming in and distributed generously. Despite the fact that the administration has shut electricity and water supply, volunteers are transporting the supplies and also keeping the spirits high. These 3 protesters from Western UP have just woken up. As they get ready to walk to the protest site, they remind themselves why they are here. किसानों को ऊपर ही तो है देश, मोदी का हमारे ऊपर ही तो पड़ा। हमें कोई रास्ता नहीं मिला और तो मैं देश की और हमारा काम हुआ नहीं, जिक्का ने वादे करे थे, कोई ने सुधार नहीं किया, फिर तो मजबूरी में आना पड़ा जी यहाँ। जब मतलब 14-14 महीने पेमेंट नहीं मिलता, कैसे अपना परिवार, कैसे अपने बच्चे कैसे पाले, कैसे बच्चों को पढ़ावे। At the main stage, the mattresses are being spread. Those who have finished breakfast assembling for their daily routine. The stage for the day is set.
अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पर मंच में, आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हैं? आज हम अनशन पर बैठे हुए हैं हाँ। क्योंकि रोज हमारे 11 लोग अनशन पे बैठते हैं किसान 24 घंटे के लिए। 10:30 a.m. now. This yellow tent is what the man spearheading this movement calls the Panchayat Ghar. This is where a steady stream of VIPs and MPs come to meet farm leader Rakesh Tikait. After a long night at the Mahapanchayat in Jeend the previous night, the agitation's star attraction is running behind schedule. राकेश जी बताइए, आंदोलन ये कितने दिन तक आखिर चलेगा? अक्टूबर तक प्लान बना रहे हैं अभी इसकी सेकंड फेज। तो अक्टूबर तक क्यों? आखिर अक्टूबर कुछ खास? अब पता नहीं क्यों है अक्टूबर तक। अक्टूबर में सर्दी से शुरू हो जाएगी। हाँ? सर्दी शुरू हो जाएगी अक्टूबर में, क्योंकि सर्दी का शुरू हुआ आंदोलन सर्दी में ही खत्म होगा। तो अक्टूबर तक चला ले जाएंगे आप? अच्छा राकेश जी, लोग ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दल के तमाम सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो राजनीतिक होता जा रहा है आंदोलन। और पुलिस उन्हें ना आने दे। राजनीतिक आदमी कौन नहीं है? मुझे एक आदमी का हिंदुस्तान में या नाम बताओ कि जो राजनीति ना कर रहा हो, बताओ। तो राजनीतिक रंग इसको दिया जा रहा है आंदोलन। कह रहा है कि राजनीति कौन नहीं है जो वोट दे रहा है। हर आदमी राजनीति है जिसने वोट दिया, और जो वोट नहीं दे रहा है उसका तो कोई कहना ही नहीं, उसका तो इस समाज से इनसे कोई मतलब ही नहीं है। कौन राजनीतिक नहीं है? अच्छा, तो ये जो राजनीतिक समर्थन आपको मिल रहा है वो आपके लिए फायदेमंद है? ये कह रहा है कि कोई लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वे राजनीतिक वाले अपना टेंट काट रहे हैं यहाँ, या अपना वो कर रहे, या वे ट्रैक्टर लेकर आए, या ऐसा तो एक विपक्ष का होता है काम कि कोई भी वो होता है तो उसमें जाते हैं। पहले ये जाते थे, अब वो जा रहे हैं। हमारा कोई मतलब नहीं है किसी से। अच्छा। ना हमारा तो बीजेपी से नहीं, हमारा तो भारत सरकार की पॉलिसी से है। राकेश जी बताइए, वेस्ट यूपी में पिछली बार बीजेपी को आपने समर्थन दिया था, बीजेपी के लोग जीते थे, आपने कई सारे चुनाव में उनकी मदद की ना? हमने आप मदद करी नहीं, आपने खुद कहा कि मैंने बीजेपी को वोट किया। मैं वोट दे दी तो उससे उसने दे दी, मेरी वाइफ ने किसी और को दी। अच्छा, हाँ। तो आपने बीजेपी की मदद नहीं की, लेकिन आपके विरोधी वोट आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की मदद वोट देने का सबको अधिकार है, कौन किसको दे रहा है। मेरी अपनी इंडिविजुअल वोट है, मैंने दे दी जिसको दी। अच्छा, अब जो आपका आंदोलन चल रहा है, आपको लग रहा है कि वेस्ट यूपी में बीजेपी का राजनीतिक समीकरण बदलेगा आपके वजह से? मैं नहीं करता, मैं राजनीति के बारे में इसमें ABCD कुछ नहीं पता, न मैं इस बारे में कोई चर्चा करता, ना हमारे कोई लोग चर्चा करते। अच्छा, ना हमारे से। अच्छा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मतलब कि चौधरी अजीत सिंह को हरवाने में आपका बड़ा रोल रहा, बीजेपी को आपने सपोर्ट किया। पॉलिटिकल बात, और संजीव बालियान, मैं पॉलिटिकल बात करता ही नहीं है, नॉन पॉलिटिकल वो है। अच्छा, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करनी। अच्छा राकेश जी, आज जो है वो ग्रेटा ने भी आपके समर्थन में ट्वीट किया था, रेहाना एक मॉडल है, उन्होंने भी ट्वीट किया, फिर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात आ रही है। इस ट्वीट को किस तरीके से देखते हैं आप? मतलब आपके समर्थन में अगर कोई सही बात करें तो सच कहना सजा का हकदार हो रहेगा। ये वैचारिक क्रांति है किसान की, मजदूर की, आम आदमी की। ये विचार से ही बंद होगी। आप किसी विचार को बंदूक से नहीं तुलना कर सकते उसको। तो भारत सरकार कह रही है कि बदनामी हो रही है भारत की, ये विदेशी लोग। जब बताओ कैसे हम रोकें भाई? कोई अगर कर रहा है तो उसको कैसे रोकें हम? कैसे? अच्छा, कोई सरकार के साथ बातचीत करने का आपका प्लान है? कोई कुछ कहीं से कुछ आया मैसेज आपके पास में? ना, हमारे पास तो नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन आपको जो समर्थन काफी जगहों से मिल रहा है, वो तो काफी भीड़ आ रही है उसमें। हाँ, भीड़ तो रोक रखी है, अभी क्या करना अभी भीड़ का, जब जरूरत होगी बुला लो। अच्छा, आपके बुलाने से फिर से लोग आ जाएंगे? हमारे जो संगठन के लोग हैं, जो संगठन वे, हम भी उसमें से एक हैं। ये किसान भी वही हैं, हम भी किसान ही हैं, ये भी किसान ही हैं। यहाँ इसका कोई नेता नहीं है।
इस आंदोलन को किसान चला रहा है, वो इसका नेता है। A group of MPs have come to meet the farmers. How, as an elected member, how can I not go there and ask that are you people okay for 3 kilometers this barricade? I have not seen in my state at Wagah border. This is like, it's like a live prison, but minus food, minus electricity, minus water. I think you cannot silence every voice. Apart from the tent city, all posters near the protest site have been replaced. Gone are the ads of luxury flats in Ghaziabad. The Kisan has come here to stay. These are farmers or leaders who have gathered at Delhi's Ghazipur border, which has seen the confrontation. What is the impact of what the farmers are saying here going to be in western Uttar Pradesh? Remember, post 2012, 2010 onwards, the BJP started seeing a surge. And then in 2017 Vidhan Sabha polls of UP, 2014 Lok Sabha and 2019 Lok Sabha polls, the BJP had a remarkable strike rate in western UP. Is that trend going to continue, or has this agitation, or will this agitation have an impact on the politics also of western UP? To find that out, let's travel into the heartland, into western UP to find out. So in these parts of western Uttar Pradesh where we are, this is Sisauli in the Muzaffarnagar district and the nearby areas. This is known as the sugarcane belt. As you can see, that huge fields of sugarcane dominates the crop in this area, and the farmers then get them sent to the various jaggery factories, to the sugar mills. But the problem that is being faced, the brunt of the farmers' agitation is being faced most by the farmers themselves, because neither are they in their fields to chop these and then send them to the jaggery factory, to send them to the sugarcane mills, and all the ancillary stuff associated with farming is also suffering. The overall employment has come down, and it is affecting the farmers most. And yet the farmers say that they will face these losses to get things going their way, which is to make their voice heard in the national capital. हम पर प्रभाव ये पड़ता है सर जी कि जब गन्ना किसान लोग खेत में नहीं जा पाने का, वो धरने के लिए बैठ जाएगा, तो गन्ना कहाँ से आएगा हमारे पास भी। अब सब किसान वहाँ पे चले गए, बेरोजगार हम भी हो गए और वो भी हो गए घर से। इनका सिस्टम होना चाहिए ना जल्दी से जल्दी, भाई सरकार को जो इनकी मांगे है वो पूरी होनी चाहिए। वो हर किसी के लिए कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं। In western Uttar Pradesh, the political impact of the protest seems clear. Most farmers pledged their support to some or the other farmer union. These Mahapanchayats seem to be mobilizing all the farm unions and bringing them on one platform, a Mahagadbandhan of farm unions. Western UP saw the phenomenal rise of the BJP. Almost all Lok Sabha seats in 2014, almost all assembly seats in 2017, and a spectacular performance in 2019. Farmers call themselves the backbone of these wins, and now they seem to be in doubt. कौन सी बड़ी चीज है? अरे किसान नहीं चाहता देश का कानून वापस लेना, कौन सी बड़ी आपस बात है? हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी जी को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में घेर लिया आज। खेती हमें घाटे का सौदा देख रही फिलहाल। The role of the Tikait brothers is important in this farmers' mobilization. While the younger Tikait manages Ghazipur, the elder brother manages his time tilling the fields and organizing Mahapanchayats, in charge of keeping the farmer agitation alive in the villages.
हमने उसमें खुले मंच से भी कह दिया मासी भाई हमने अजीत सिंह को हरा कर बहुत बुरा करा, क्या कौन कह सके। हमने कहा, हमने स्वीकार करा, हमने वोट दी। His job is to not only mobilize his own supporters but even manage the anger of Muslim farmer leaders who had blamed that a section of the farmers supported BJP in the aftermath of the lethal sectarian violence in 2013. जो बटा हुआ सा समाज था, आपको लगता है कि अब वो किसान के नाम पर एक साथ हो रहे हैं और आप इन महापंचायत के माध्यम से समाज को एक साथ ला सकते हैं? क्योंकि ये तो आप भी मानेंगे कि समाज बटा था। बटा था, बिल्कुल बटा था, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने इस जनमानस का एक ऐसा दिमाग ऐसा हैंग कर दिया था जिसे एक तबका बिल्कुल नहीं देख रहा था जना भाई ये क्या है, पर ऐसी बात नहीं। पर्दे के पीछे की बात कुछ और है और पर्दा जब खुल जाए कुछ और बात है। इन्होंने 2013 में हिंदू मुस्लिम का वो करवा के हमारे किसान भाई शुद्ध है, भाई बहुत शुद्ध है, इतने तावड़े यकीन कर ले, इसमें ये कामयाब हो गए, इसमें कामयाब हो गए, आगे नहीं होने गए, आगे मन में तो काट दो। हम आप लोगों को यही कह रहे बातचीत, आगे कोई सा भी चुनाव हो, बाकी किसी का यकीन कर दो, भाई ने कहना कह दियो कि देख हम क्या आप लोग सब कुछ भुला गए, कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई बिरादरी, सबसे ऊपर हो गए। किसान के सम्मान को बचाने के लिए एकदम बेहिचक कुछ भी नहीं, बिल्कुल सच्चे दिल से इकट्ठे हो जाओ। The Tikait brothers regularly talk, coordinating their strategy, brushing aside any criticism of a rift between the brothers. आपने शायद इस तरीके के आर्टिकल भी पढ़े होंगे। आप दोनों भाइयों को लेकर के भी एक बड़ा मतभेद की बात कही जाती है कि आप थोड़ा सा प्रो बीजेपी दिखते थे, उनके मंच पे बैठते थे, और राकेश टिकैत जो है वो अलग लाइन लेते थे। तो अब हम किस स्थिति में माने आप दोनों को? क्या आप एकजुट हैं इस मामले पे? हमारा बिल्कुल एक ही बात है और पहले से ही एक है ना, हमारे घर में कोई फर्क है किसी बात का। हमारी सुबह और शाम बात खूब हो। हमने राकेश को कहा इस तरह की भाई माहौल बना दिया सरकार ने, पानी रोक दिया, बिजली काट दी और जो ये आदमी आने वाले थे वे रोक दिए, मगर इस तरह की बात नहीं, हम इस आंदोलन को नहीं चला सकते। पहला आरोप लगा थे भाई उठ कर चले आए, अब या कोई आरोप नहीं लगा। इस तरह का माहौल है, ये मार पिटाई कर देंगे, थोड़े आदमी रह गए, गिने चुने आदमी 100-200 आदमी रह गए होंगे, 500 रह गए होंगे, उन्होंने कहना नहीं सब बात होगी, मैं गिरफ्तार दे दूंगा और इनके साथ बात होगी भाई जो ये जितने आदमी है यहाँ पे ये सुरक्षित यहाँ से निकाल दो। इन्हें एक भारतीय जनता पार्टी एक जीतती हुई बाजी हार गई, उसके जिम्मेदार में हमने उसके जिम्मेदार हमने उनके पाले में गेंद घेर दी थी, हमने अपने को समर्पण कर दिया था, चलो कोई बात नहीं। हमने जब हमने देखा इस तरह का माहौल, हम अपने इतिहास पर दाग नहीं लगन देने के, कुछ भी बात हो जाओ। हमने फिर मोर्चा संभाला, हम कहने भाई कुछ नहीं, हटकर नहीं जाना, एक मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए। तो उसमें कितने आदमी लोग गए, राकेश के में आंसू वैसे ही थे, राजनीति हमें कहीं की राजनीति करने, उसके आंसू बिल्कुल जायज थे। अगर इस तरह का माहौल दूसरा होगा तो दूसरा रंग लिया जा सके, इसमें सरकार इस बात का ध्यान लगे, इनसे संभलने की नहीं बात। देख लो ये Tikait also says that the BJP local leaders support him, if only they had a chance to speak their mind. भाजपा में हमारे परिवार के नहीं, संजीव बालियान रघुवंशी गोद से है, हम भी रघुवंशी गोद के हैं, तो उनके मन की जो बात बुझ जा तो उनके मन में भी दर्द है। अच्छा, उन्होंने आपको बताया ये चीज? पता, सारी बात हो जा, हम नहीं कहते, उनके मन में भी दर्द है। मैं इस तरह की बात है, मतलब आप कह रहे हो दिल से आपके साथ है? दिल तो हमारे साथ है, अगर सच्चे दिल तो वो करे तो दिल तो हमारे साथ है, कोई वो नहीं है बातचीत। ऐसा संजीव बालियान का हम वो नहीं करते, कोई उसमें कोई राजनीति करना, कोई कुछ अखबार में भाजपा में नहीं, वे हमारे परिवार के है।
उन पर दबाव है, उन पर चाप भी भरी जा, तो मैं इतना बोलना, इस फालतू नहीं बोलना, पार्टी से निकाल दिए जाओगे, थारी जांच होगी, फुलाना टिकड़ा, इस तरह के वो तो दबाव में करें। हमें तो कहीं का दबाव नहीं, हम क्या करें। Amid the quiet in the fields is simmering discontent. With the room for dialogue shrinking and confrontation the order of the day. Both parties, the government and the protesting farmers, may have been divided in their positions, but they are united to achieve their goal. Their fight for a better tomorrow, a better India.